तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. In previous video, we study about the unit number 6, the Qaids, VN and Pakistan. कायदे आज़म का वीएन और पाकिस्तान बनाने का क्या मकसद था। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वीएन ऑफ पाकिस्तान दैट कायद हैव for the formation of Pakistan. First of all, I am going to give you some brief introduction about the Quaid-e-Azam. Who is Quaid-e-Azam? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a famous leader of Pakistan. He is called the father of the nation. He was born in Karachi on December 25, 1876. He received his early education from Karachi. After matriculation, he was sent to England for higher studies. He qualified from the London. On his return to India, he joined the Indian National Congress. Later on, he joined Muslim League. He worked very hard for a separate homeland for the Muslims. The Hindus and the British opposed him, but he faced every problem bravely. In 1934, he became the president of All India Muslim League. The dream of a separate homeland came true on August 14, 1947. Quaid-e-Azam was a progressive and moderate Democrat. He was a broad-minded and liberal-minded leader. He disliked narrow-mindedness and all forms of prejudice. After the creation of Pakistan, he declared granting equal rights for all communities without any discrimination of caste, color and creed. While delivering a speech in Quetta, the Qaid clearly said, "You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or any other place of worship in the state of Pakistan." So, the theme of this chapter was that you need to appreciate the integrity and valor of the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and the theme is the national pride and the role of hero is in the art of nation building. Our great leader Quaid-e-Azam was profoundly concerned for his nation as well as for Pakistan. His goal was not only the achievement of Pakistan but to stabilize the nation and the state simultaneously. For the accomplishment of this mission, he undertook country-wide tours at the cost of his wealth. He wished and strived for the unity of the masses for the welfare of Pakistan and its people. So students, this was a brief introduction about the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and his vision for the formation of Pakistan. Now move on to the exercise. First one is glossary. In glossary, we are going to discuss some vocabulary words or difficult words related to the chapter and their meanings. First one is aptitude. Aptitude means काबिले सलाहियत, natural ability. Fundamental बुनियादी, basic और primary principles. Enormity ज़्यादा मतलब कि अजीम, enormous. Overwhelmed, affected deeply. Overwhelmed का मतलब होता है मगलूब हो जाना किसी से. So affected deeply और impress. Pivot, central point, मरकज़. Numerous बहुत ज़्यादा, many. Sterling शानदार, of the highest quality. So there is one oral activity. Discuss the following in groups. First one is question A.
वाई डिड कायद आज़म इग्नोर हिज एवर फेलिंग हेल्थ? कायद आज़म ने अपनी हमेशा से बिगड़ती हुई सेहत को नज़रअंदाज क्यों किया? बिफोर द पार्टीशन आर कायद हैज़ हैड टू स्ट्रगल हार्ड फॉर अ सेपरेट होमलैंड of the Muslims of the subcontinent. After the creation of Pakistan, the Pakistanis had to face a number of problems. At that time, the Qaid's health was failing badly, but he could not take rest as he was to make a country-wide tour to build confidence and raise the people's spirit. So, without caring for his failing health, the Qaid worked hard to solve the problems faced by the Pakistanis in those days. हाँ जी, तकसीम से कबल कायद अज़म को बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की खातिर ख़ासी जदोजहद करना पड़ी। पाकिस्तान की तख्लीक के बाद पाकिस्तानियों को बहुत से मसाइल का सामना था, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ख़राब हालत में था, यानी कि जो तकसीम थी वो भी गैर मुनासिब तरीके से हुई थी। पाकिस्तान के हिस्से में बहुत कम चीज़ें आई थी, तो बहुत से मसाइल थे। उस दौर में कायद की सेहत बहुत बुरी तरह बिगड़ रही थी, लेकिन वो आराम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें एतमाद पैदा करने और लोगों के जज्बे को बुलंद करने के लिए पूरे मुल्क में दौरे करना थे। लिहाजा कायद आज़म ने अपनी बिगड़ती हुई सेहत की परवाह किए बगैर उन मसाइल को हल करने के लिए, जिनका उन दिनों में मुसलमानों को सामना था, सख्त मेहनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, वाई डिड ही विश फॉर अ कंप्लीट हार्मनी एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान? कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लोगों में मुकम्मल हम आहंगी और इत्तेहाद की ख्वाहिश क्यों की थी? नो नेशन कैन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर इफ़ इट हैज़ डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी इन इट्स रैंक। ये क्वेश्चन बेटा हम पहले भी कर चुके हैं। So the Qaid wished for a complete unity and harmony among the people of Pakistan. He wanted to see his people turning into a strong and invincible nation. कोई कौम भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती या खुशहाल नहीं हो सकती जब तक उन लोगों में इत्तेहाद ना हो या हम आहंगी ना हो। लिहाजा कायद ने पाकिस्तान के लोगों में मुकम्मल इत्तेहाद और हम आहंगी की ख्वाहिश पैदा की। वो अपने लोगों को एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर कौम में बदलता हुआ देखना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि पाकिस्तानी कौम दुनिया की ऐसी कौम बन जाए जिसे कोई भी शिकस्त ना दे सके या जिसे कोई भी बुरा भला ना कह सके। इतनी प्रॉपर किस्म की कौम बनाना चाहते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ इग्नोरिंग कायद एडवाइस? कायद की नसीहत को नज़रअंदाज करने का क्या नतीजा हुआ? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं पिछली रिकॉर्डिंग में। इफ़ वी कीप इग्नोरिंग द कायद एडवाइस वी आर फेटेड टू बी सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स। अगर हम कायद की नसीहत को इसी तरह नज़रअंदाज करते रहेंगे तो हमारे बहुत सी मसाइल और मुश्किलात में घेरे जाना नागुज़ीर है, यानी कि ये लाजमी तौर पर होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द कम्प्रीहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन? कायद आज़म को अपनी कौम पर कितना एतमाद था? द कायद हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन। He was sure that his nation could face every kind of problem and courageously and struggle for its goal with great determination. कायद को अपनी कौम पर बहुत ज़्यादा एतमाद था। उन्हें यकीन था कि उनकी कौम हर किस्म के मसाइल का हिम्मत और जुर्रत के साथ सामना कर सकती है और बड़े अज़म के साथ अपनी मनाजिल के लिए जदोजहद भी कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कायद कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन? कायद का एक कौम के बारे में क्या तसव्वुर था? अकॉर्डिंग टू द कायद कंसेप्ट आवर नेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कल्चर विद इट्स डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ। कायद आज़म का ये मानना था कि ये कौम जो है, यानी कि पाकिस्तान जो कौम है, वो उसकी बुनियादी ज़िंदगी के बारे में अपने इम्तियाज़ी नुक्ता नज़र के साथ मज़हब और सकाफ़त पर इस्तवार है, यानी कि मज़हब और सकाफ़त के ऊपर हमने इस कौम की बुनियाद रखी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म? कायद आज़म की नज़र में नज़रिया पाकिस्तान क्या था? The ideology of Pakistan in view of Quaid-e-Azam was based on the fact that Muslims are an independent nation and nothing can deprive them of their national political identity. कायद के नज़रियात इस हकीकत पर मबनी थे कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है और कोई चीज़ भी उन्हें उनकी शनाख्त से महरूम नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स? हमारे आजकल के जो मौजूदा मसाइल हैं उनका क्या हल हो सकता है? Most of our present problems can be solved easily if we start following the global golden principles of Qaid gave to the nation.
We should think and act as a nation to remove disunity and disharmony among our rank. As we discuss फर्स्ट, हमारे ज़्यादातर मौजूदा मसाइल बआसानी हल हो सकते हैं अगर हम उन सुनहरे असूलों पर चलना शुरू कर दें जो कि कायदे आज़म ने कौम को दिए। हमें अपनी सफ़ों के अंदर नफाक और ना हमांगी को ख़त्म करने के लिए एक कौम की हैसियत से सोचना और अमल करना चाहिए। यानी कि हमें अपने अंदर यूनिटी लेकर आना चाहिए और हारमनी लेकर आना चाहिए पूरी कौम को, और एक ही तरीके से सोचते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हम कामयाब हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन? हम एक मजबूत कौम कैसे बन सकते हैं? सो द आंसर इज़ वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन बाय फॉरगेटिंग आवर डिफरेंसेस एंड बाय फॉलोइंग द पाथ शोन टू अस बाय आवर ग्रेट कायद। हम अपने बाहमी इख्तलाफात या नाराज़गियाँ भुलाकर और उस रास्ते पर चलकर जो कायद ने हमें दिखाया था एक मजबूत कौम बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द वोकैबुलरी। फर्स्ट वन, इनसर्कल द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड दैट रिलीज टू द टेक्स्ट। हाँ जी, हमने उन वर्ड को सर्कल करना है जो कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है उनसे रिलेटेड हो। वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। अफर्म्ड का क्या मतलब है? अफर्म्ड का मतलब है सैड इम्फेटिकली, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर कहना। सो द ऑप्शन इज़ बी। Second one, we have our own distinctive outlook of life. So the underlined word is distinctive. We have to look about the distinctive synonym. First one is distinguish, powerful and wavering. So the answer is powerful, faith. Keep up your morale. What is the meaning of morale? Morale means wealth, fortitude or voice. So the answer is self-esteem और wealth. यहाँ पर self-esteem या fortitude हो सकते हैं। Do not be afraid of death. What is the meaning of afraid? Afraid means scared, डर जाना. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. What is the meaning of face? Face means cope with. B option. Move on to the next one, B. Consult a treasure and find a synonym of the following words related to the vocabulary question. First one, morale. Morale means जोश, वलवला, and the synonym is enthusiasm. Voyage, समंदरी सफ़र, journey. Ambition, ख्वाहिश रखना, desire. Nomenclature, नाम रखने का निज़ाम. A system of naming things. Identity, शनाख्त करना, पहचानना. So recognition is the synonym. Distinctive, मुख्तलिफ, mean different or separate. Emergence, ज़हूर होना. Visibility, reappearance. Struggle, कोशिश करना. Effort और try. Numerous, ज़्यादा, many. Strong, मजबूत. Firm और powerful. Ideology, नज़रिया, set of ideas. So these are the difficult words or the words and these are the synonyms. Question C. Write the antonyms of the following words. बेटा एंटोनिम का मतलब होता है उल्ट, सिनोनिम का क्या मतलब होता है सेम वर्ड्स के मीनिंग, ठीक है, और एंटोनिम होता है मुतजाद यानी कि उल्ट उसके लिखने हैं। जहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमने उनका उल्ट मतलब बताना है। कॉन्फिडेंस, एतमाद होना. सो डाउटफुल और डिसबिलीफ का मतलब होता है अदम एतमाद का शिकार होना. ऑनर, इज़्ज़त. सो इसका उल्ट क्या होगा, यानी कि एंटोनिम इसका क्या बनेगा, डिसऑनर. बिलीफ, यकीन. सो द एंटोनिम इज़ डिसबिलीफ, बेयकीन होना. सेपरेट, अलहदा हो जाना. यूनाइटेड, मुत्तहिद हो जाना. अपोजिट वर्ड्स हम ढूंढ रहे हैं ना. फर्स्ट यूनिटी, इत्तेहाद, एंड डाइवर्सिटी, अलग अलग हो जाना. एंटोनियम है ये इसका. पॉलिटिकल, सियासी, एंड द एंटोनियम इज़ नॉन पॉलिटिकल. मॉडरेट, म्याना रवी, एंड इमॉडरेट, बेजा. क्वेश्चन डी. यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इडियम्स दिए हुए हैं, उनको हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. फर्स्ट वन इज़ बिट्स एंड पीसेस, छोटी छोटी यानी कि अशिया. सो द सेंटेंस इज़ शी पुट ऑल हर बिट्स एंड पीसेस इन अ बैग एंड लेफ्ट. नेक्स्ट वन, मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी. द मैन इन द स्ट्रीट इज़ अवेयर ऑफ द राइट एंड रॉन्ग. रेजिंग स्पिरिट, हौसला बुलंद करना. द लीडर स्पीच रेज द पीपल्स स्पिरिट. पास थ्रू,
किसी जगह से गुजरना। while passing through the forest we saw green trees. fall a prey, शिकार बनना। his son fell a prey to bad habits. next question, what is denotation? ज़ाहिरी मानी का क्या मतलब होता है, यानी कि डेनोटेशन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं वो हमसे। सो द आंसर इज डेनोटेशन इज लिटरली और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड स्नेक इन अ डिक्शनरी विल हैव द डेनोटेशन मीनिंग स्केली एंड लेगलेस. द डेनोटेशन देयरफॉर रेफर टू द मोस्ट बेसिक और स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ अ वर्ड. डेनोटेशन से मुराद अल्फाज के मानी होते हैं या लुग़वी मानी जिनको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ सांप के लुग़वी मानी होंगे पैमाइशी निशानात और बग़ैर टांगों वाला, यानी कि सांप जो होता है वो क्या होता है, बग़ैर टांगों के होता है ना, इस वजह से उससे रिलेटेड वर्ड्स ढूंढने हैं। लिहाजा डिनोटेशन लफ्ज़ के इंतहाई बुनियादी और मौजू मानी का जिक्र करती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कॉनोटेशन? मख्फी मानी का क्या मतलब होता है? डेनोटेशन होता है रिलेटेड मानी, और कॉनोटेशन हम किसी से एक्सप्रेसिव वे में आ जाएं, ठीक है, किसी को किसी के साथ जोड़ दें। Connotation, on the other hand, refer to the idea that is suggested or associated with the word. The connotation meaning of a word exists together with the denotative meaning. The connotation for the word snake could include evil or danger. It has the connotation of someone who cannot be trusted. So, इसके अंदर बेटा हम कैसे इसकी करेंगे कि कॉन्टेशन उस ख्याल का जिक्र करता है जिसे एक लफ्ज़ से मंसूब कर दिया जाता है और उसके मख्फी मानी यानी कि छुपे हुए मानी के साथ वजूद रखता है। लफ्ज़ सांप के लिए उसका कॉनोटेशन मीनिंग होगा बुराई या फिर ख़तरा, यानी कि सांप किस चीज़ की अलामत है, बुराई की या ख़तरे की अलामत है ना। ये ऐसे शख्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिस पर भरोसा ना किया जा सके। जैसे कि कोई ऐसा वर्ड जो कि हमें ख़तरनाक लग रहा हो, हम उसको कह सकते हैं कि ये स्नेक है, ठीक है। तो जब हम उसको स्नेक कहेंगे तो वो स्नेक होगा तो नहीं, लेकिन हम उसके लिए वो स्नेक वर्ड जो है वो एज अ कॉनोटेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसको दबे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि ये ख़तरनाक है हमारे लिए, ठीक है, ऐसे। Next question is, for each of the word given in the column give one similar meaning mean denotation and one negative and positive connotation. कॉलम के अंदर हमने एक वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके डिनोटेटिव मीनिंग और पॉजिटिव और नेगेटिव कनोटेशन हमने निकालने हैं। बेटा अगर आपको याद हो तो ये कनोटेशन वाली जो एक्टिविटी है ये हम पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। फर्स्ट वन, फैट। फैट का डिनोटेटिव मीनिंग होगा ओवरवेट, देखें रिलेट कर रहा है ना उसके मीनिंग से। और पॉजिटिव कनोटेशन होगा प्लम्प एंड नेगेटिव में ओबीस। ओबीस का वर्ड जो है मोटापे में इस्तेमाल होता है, तो ये नेगेटिव कनोटेशन में आ रहा है, एक नेगेटिव वाइब दे रहा है हमें। नोटोरियस, डिफेम्ड इसका डेनोटेटिव मीनिंग होगा एंड वेल नोन पॉजिटिव कनोटेशन, ऑफ इल फेम ये नेगेटिव कनोटेटर में आएगा। स्पिंस्टर अनमैरिड वुमेन डेनोटेटिव मीनिंग है, वर्जिन पॉजिटिव है और ओल्ड अनमैरिड वुमेन ये नेगेटिव है। स्टर्न, स्टर्न का डेनोटेटिव मीनिंग हार्ड होगा, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होगा और नेगेटिव कनोटेशन में क्या होगा, अनकाइंड होगा। प्राउड, सेटिस्फाइड, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड एरोगेंट। श्रूड, इंटेलिजेंट, वाइज एंड क्राफ्टी। 7-1 इकोनॉमिकल, डेनोटेटिव मीनिंग होगा लो इन कॉस्ट एंड पॉजिटिव कनोटेशन मनी सेविंग एंड द नेगेटिव कनोटेशन सब स्टैंडर्ड। फेल, बी अनसक्सेसफुल ये डेनोटेटिव मीनिंग है, क्लोज पॉजिटिव में आ जाएगा और बी डिसअपॉइंटेड ये नेगेटिव कनोटेशन में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। बेटा ये जो स्ट्रेस वाली एक्टिविटी है ये भी हम चैप्टर में कर चुके हैं पहले, सो इस यहाँ पर हम उसको दोबारा देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। वर्ड्स दिए गए, आपने उनमें से प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस के बारे में आपने बताना है कि किन वर्ड्स के ऊपर प्राइमरी यानी कि जो स्टार्ट के वर्ड होंगे वो प्राइमरी स्ट्रेस दे रहे होंगे और जो बाद में जिन वर्ड्स के ऊपर आएगा वो सेकेंडरी स्ट्रेस दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अनरिटन, यहाँ पर देखें अन का जो वर्ड है वो प्राइमरी स्ट्रेस दे रहा है और रिटन का जो वर्ड है वो सेकेंडरी स्ट्रेस दे रहा है। अनरैप, यहाँ पर अन का वर्ड है प्राइमरी स्ट्रेस और रैप सेकेंडरी स्ट्रेस। अब रहम, देखें अब का जो वर्ड है ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रेस दे रहा है, शुरू में हम अब के ऊपर जोर दे रहे हैं तो प्राइमरी स्ट्रेस है और रहम सेकेंडरी स्ट्रेस। प्रेसिडेंट, देखें प्रेसिडेंट में प्रे के ऊपर हम प्राइमरी स्ट्रेस दे रहे हैं और जिडेंट सेकेंडरी स्ट्रेस। टीच, तो ये फुल वर्ड जो है एक ही हम उसमें बोल देते हैं
एक ही टाइम में, तो ये प्राइमरी स्ट्रेस ही दे रहा है। पॉन्डर, पॉन्डर, देखें पॉन फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रेस दे रहा है और डर सेकेंडरी स्ट्रेस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ग्रामर। टुडे वी डिस्कस अबाउट द एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एक ऐसा वर्ड जो कि वर्ब के मीनिंग के अंदर इजाफा कर दे। देखिए ऐड इजाफा करना और वर्ब के मीनिंग के अंदर जो लफ्ज़ इजाफा कर दे उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में या किसी एडवर्ब के मीनिंग में ही इजाफा कर दे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब यूजुअली कम इन द फॉलोइंग पोजीशन इन अ सेंटेंस। एडवर्ब कहाँ पे लगाए जाते हैं? अगले मकामात पर आमतौर पर लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली एट अ कॉन्सर्ट लास्ट संडे। देखें यहाँ पर डिफरेंट उसकी क्लासेस बयान की गई हैं। फर्स्ट वन ब्यूटीफुली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कंसर्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। लास्ट संडे एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। इन्फिनिटिव्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप अपनी मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हैं। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव क्या आएंगे? टू एंड गो। बी है ही मेड पीपल वर्क, उसने लोगों को काम से लगाया। तो देखें यहाँ पे वर्क का जो वर्ड है वो इन्फिनिटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। द वर्ड गिवन इन बोल्ड हैव नो सब्जेक्ट, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता इसलिए हम इनको इन्फिनिटिव कहते हैं। वी से दैट टू गो इज़ द इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब, समटाइम टू इज़ द यूज्ड इज इन एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट जेरेंड्स। What are gerunds? A gerund is that form of the verb which end in ing and has the function of a noun। हाँ जी, इसम फेल यानी कि वर्ब की वो हालत है जो ing पर ख़त्म होती है और इसम का काम करती है। एक ऐसा नाउन जिसके एंड पर हम ing यूज़ कर लें वो जेरेंड होता है। क्लियर? एक ऐसा नाउन जिसके एंड पर हम ing यूज़ कर लें वो जेरेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेंटिंग। पेंटिंग क्या है बेटा? पेंट नाउन है और पेंट के साथ हम ing लिख दें तो क्या बन जाएगा? पेंटिंग बन जाएगा। तो ये पेंटिंग का वर्ड जो है ये जेरेंड है क्योंकि हमने नाउन के साथ ing लगा दिया है। क्लियर? आई लाइक पेंटिंग, ये भी जेरेंड है। माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। इन दिस सेंटेंसेस पेंटिंग डज द वर्क ऑफ अ नाउन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखें सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ की जा रही है, सेकेंड में ऑब्जेक्ट के वर्ब के तौर पे यूज़ की जा रही है और थर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ की जा रही है। कंडीशनल टाइप 3 अनफुलफिल्ड कंडीशन। तीसरी शर्त क्या होती है? कंडीशनल ऑफ दिस टाइप से दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज अ सर्टन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बताया जाता है कि कोई ख़ास काम नहीं हुआ यानी कि शर्त पूरी नहीं हुई। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन द लेसन के अंदर से हमने काइंड ऑफ एडवर्ब लिखनी है यानी कि ये सारी जितनी भी दी गई हैं काइंड ऑफ एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। सो हमने चैप्टर में से ढूंढ कर लिखना है कि कौन कौन से ये हैं। फर्स्ट वन, सो द आंसर इज फर्स्ट वन एडवर्ब ऑफ मैनर एंड स्टेट। सो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर स्टूडेंट देखें ब्रेवली है एंड क्लियरली है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कोई भी यूज़ नहीं की गई चैप्टर के अंदर। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब टाइम में अर्ली एंड टुडे ये दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इस्तेमाल नहीं की गई चैप्टर के अंदर। एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो फर्मली का वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज सा, आई सा हर कॉम्बिंग हर हेयर। नेक्स्ट प्रोमिस्ड, शी प्रोमिस्ड टू मीट मी अगेन। वांटेड, चाहना, दे वांटेड टू बाय अ न्यू पेन, वो चाहते हैं कि मैं एक नया कलम ख़रीद लूँ। नेक्स्ट बिगेन, शुरू करना, सडनली शी बिगेन टू सॉब, हाँ जी उसने सिसकियाँ लेना अचानक शुरू कर दी। आस्क्ड, दे आस्क्ड अस टू से समथिंग। टोल्ड, अहमद टोल्ड मी नॉट टू पुट ऑन द कैप। डिसाइडेड, दे डिसाइडेड टू सेल द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, कंप्लीट दिस फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंड्स एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। हाँ जी हमने जेरेंड्स को यूज़ करना है, ये जितने भी जेरेंड्स दिए गए हैं और इनको यूज़ करते हुए हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन इज़ गुड एट, शी इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एक्यूज्ड ऑफ, दे वर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। एक्यूज्ड ऑफ मतलब कि इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट वन सैड एट, तंग आ जाना या फिर किसी चीज़ से सैड एट अफसुर्दा हो जाना।
द किंग वॉज सैड एट द किलिंग ऑफ हिज सोल्जर। नेक्स्ट वन, टायर्ड ऑफ, ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग इन द फैक्ट्री। थर्ड वन, ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग इन द फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। हाँ जी, इन कंडीशंस को हमने फिल करना है कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी जो कि इनको फिल कर देगी। सो फर्स्ट वन इज़ इफ़ यू हैड स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, सो इसका आंसर होगा यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर आप मेहनत करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे यू वुड पास द, हैव पास द एग्ज़ाम। सेकेंड वन, इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर आप मुझ तक आते हो या मेरे पास आते हो, सो अगर हम इसको फिल करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। थर्ड वन, इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर मैं उसे देख लेता, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई वुड हैव अरेस्टेड हिम। अगर मैं उसे देख लेता तो मैं उसे क्या कर लेता, अरेस्ट कर लेता, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी सिचुएशन लगाकर इसको फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ F also related to the grammar. Write 10 sentences using past perfect tense. Past perfect tense को यूज़ करते हुए कोई से 10 tenses बना दें। तो यहाँ पर दिए गए हैं 10 tenses, देख लें। फर्स्ट वन, they had already taken breakfast। हमें कैसे पता चलेगा कि ये past perfect है बेटा, क्योंकि past perfect में जो helping verb यूज़ होता है वो had यूज़ होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। past perfect में helping verb had यूज़ होता है और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। ये दो खसूसियात होती हैं पास्ट परफेक्ट की। सो देखें, आप देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट सब में ये चीज़ें देखी जाएंगी। दे हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट वन, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम। हैड एंड रीच्ड, थर्ड फॉर्म। थर्ड वन, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस द गेस्ट हैड गॉन। हैड और गॉन, एंटर्ड, ठीक है। फोर्थ वन, ही टुक टी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। हैड एंड फिनिश्ड, ये दोनों वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट को। शी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड। हैड एंड प्रिपेयर्ड। 6, मैनी मुस्लिम्स हैड बीन किल्ड बिफोर पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ पर हैड बीन का वर्ड एंड किल्ड का वर्ड जो है वो पास्ट परफेक्ट को नॉमिनेट कर रहे हैं। 7 वन, The Qaid had delivered his speech when a journalist asked him a question. Had and delivered. 8, they had already accepted their defeat. Had and accepted, देखें यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है। The snake had bitten the traveler before he came to know its presence. Had and bitten, bite की थर्ड फॉर्म bitten. We had already learnt our lesson. Had and learnt. लर्न जो है वो लर्न की थर्ड फॉर्म है। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जितने भी सेंटेंसेस बनाए गए हैं, ग्रामर की गई है, उन तमाम को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद करना है, सेंटेंसेस को बनाना है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोज़ इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।